10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम की प्रतियोगिता में 21 का कुल समावेश नर्मदा और कार्तिक का यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कंपटीशन में, इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में। और यहां इस शॉट के बाद 10.4 है नर्मदा नितिन का, 10.0 निशिता बोमिदी, उमा महेश अम्बादिनी 10.2 और 10.8 यहां पर श्री कार्तिक सबरी राज ने, और यहां पर भी 2 अंक हासिल किए हैं। और ये स्कोर नर्मदा नितिन 10.5, निशिता बोमिदी 10.4, श्री कार्तिक सबरी राज 10.3 एंड उमा महेश 10.1। सो 20.8 2 अंक यहां पर मिले, 20.5। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने यहां पर जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। क्या शानदार प्रदर्शन यहां पर, और यहां पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने। So gold medal match about to begin. Parth and Shruti of Kurukshetra University right in front of you on your screens. तो यहां पर 2 अंकों से बढ़त बना ली है वीर नर्मदा साउथ गुजरात की इस जोड़ी ने। 10.5 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मिला है और 20.8 यानी कि 2 अंकों का इजाफा यहां पर और होते हुए वीर नर्मदा साउथ गुजरात को। स्मित रमेश भाई 10.7, 10.5 यहां पर भी 2 अंक, 8-2 से अब आगे हो गई है वीर नर्मदा साउथ गुजरात। 10.8 ध्रुवी आशीष पाचा, 10.1 स्मित रमेश भाई, और यहां पर श्रुति ने किया है 10.6। अब देखना होगा पार्थ गौड़ का स्कोर। This match, gold medal match, coming towards its conclusion. Veer Narmad Gujarat University won the gold medal. सबसे पहले जो शुरू होगा 1500 मीटर फ्री स्टाइल। Bhavya Sachdeva is not there. Now that's a big surprise, Anand. The hopes obviously will be on Ashmita Chandra and Diksha Sandeep Yadav. अश्मिता चंद्रा इस समय सबसे आगे नजर आ रही हैं। दूसरे स्थान पर दीक्षा संदीप यादव लेन नंबर 6 में। Where the swimmers, you're looking at them, started very fast, then they are going to maintain a steady pace in the middle, but the middle is far away. It's still Ashmita Chandra, 342.58. 800 मीटर फ्री स्टाइल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, 200 मीटर फ्री स्टाइल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। रमा देवी महिला विश्वविद्यालय की आयुषी दत्ता हैं जो लेन नंबर 1 में हैं, और लेन नंबर 2 में संजना सुनील जोशी इस समय चौथे स्थान पर। बड़े स्विमर्स के साथ स्विमिंग करने की न सिर्फ चाहत रखती हैं, उस दिशा में बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी कर रही हैं। She started well, she was good in the middle, and then finally now here towards the closing stages, just a few meters away, she will touch the wall, take a gold, and what a richly deserved gold this is. दीक्षा संदीप यादव ने सिल्वर मेडल जीता है और ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट 1500 मीटर फ्री स्टाइल। So the result then, Ashmita Chandra of Jain 19 minutes 05.15, Diksha Sandeep Yadav of Savitribai Phule University of Pune 1925.82. So the 200 meters individual medley, where they start off with a fly. That's going to be the first 50 meters. They'll follow it up with the back, then the breast and the free. We're looking at the favorite without doubt, Shrungi Bandekar, 200 meters back silver, 4x100 medley. She got a gold out there. And then Kalyani Saxena, 400 medley silver and a 200 fly. That's originally it is given to us out here. Shrungi Bandekar also coming back from an injury over the last year. She's been an outstanding swimmer. जी हाँ, 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराक अपनी पीठ के बल एकदम हाई हिप पोजीशन में ग्लाइड कर रहे हैं।
ब्रेस्ट ओपन टर्न आने वाला है। श्रृंगी बांडेकर, कल इनसे बात हो रही थी, कह रही थी कि आज इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मैं जरूर जीतूंगी। ये आखिरी चरण चल रहा है, आखिर के 20-25 मीटर बाकी है। ये फ्री स्टाइल है और इसमें तो महारत हासिल है यहां पर श्रृंगी बांडेकर को। Well, she has had the tactics out here. Once again, no one on the picture frame here in the 200 meters individual medley. She's steaming away like a motivative. She has no one, in fact, looking at her. No one breathing down her neck. There she is now going to take the ball. Just about to take it. She takes it, takes the gold. ये हैं श्रृंगी बांडेकर, जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल 2 मिनट 32.53 सेकेंड की टाइमिंग के साथ। So the confirmation there, it is correct. Shringi Bandekar 232.53, Yashvi Pradap Kharab of the NC 238.40, and Kalyani Ajay Saxena one more time. The goal eludes her 238.77. Coming to the start of the third event, which is the men's 100 meters breaststroke. और क्या यहां पर आज एक बार फिर अपना गोल्डन परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। शुरुआत हो गई है और मणिकांता आशा के अनुरूप लेन नंबर 4 में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ी टक्कर मिल रही है पी सुदेश कुमार से। पी सुदेश कुमार लेन नंबर 1 में है और लेन नंबर 2 में यश अनिल घुलाने, दोनों ही वहां पर मणिकांता को टफ फाइट देते नजर आ रहे हैं। इस समय टॉप 3 में ये तीनों हैं। अब थोड़ी स्थिति बदली है। लेन नंबर 6 में नजर डालिए प्रीतमोय बख्शी, इस समय वो भी इस रेस में बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले 50 मीटर के बाद फ्लिप टर्न करेंगे मणिकांता। Look at the legs there underwater and the head underwater for the second half of the stroke. He is going there, but what a fight he's got out here. Sudesh Kumar, Yash Anil Gulani, a bronze in the 50 breast, and Manikanta, a gold in the 200 breast. This is going to be a contest once again, which might go down to the wire, but Anand, I have a feeling Manikanta should take it away. मणिकांता इस समय सबसे आगे हैं और क्या मणिकांता इस रेस को गोल्ड मेडल के लिए फिनिश करेंगे? टफ फाइट जरूर है, थोड़ा एडवांटेज उनके पास है। मणिकांता ने सबसे पहले टच किया है फिनिश लाइन को। Manikanta then 106.44, Yash Anil Gulani 106.69, not much of a difference, and P. Sudesh Kumar 106.97 takes the bronze. So we're looking at the 100 meters where it could be between Grishmani, Chaugule and Divyanka Pradhan. So this is a packed field out here in the 100 breast as they start off here in the fourth final of the afternoon session. Look at that body out there, steep angle of the body, the forward movement, which is slowing down the swimmer more than any other style. And we all know that the breaststrokers are abdominal muscles and hips to add to the extra part of the kick. Who is it? Grishmani in the lead straight away. Grishmani had won the gold, but Anand just mentioned that are we looking at a surprise out here? This was supposed to be close, but that's the girl out there. Anand, she's going to take it away because the lead is enormous. जॉयश्री इस समय फिनिश लाइन की तरफ सबसे आगे। क्या वाशुपाली नागा ग्रीष्मनी जो पिंक में आपको नजर आ रही है, क्या वो सबसे पहले टच करेगी? क्लोज फिनिश वाशुपाली नागा ग्रीष्मनी के नाम। ये थोड़ा सा निराशाजनक पहलू उनके लिए, थोड़ी निराश जरूर है वाशुपाली नागा ग्रीष्मनी। उन्हें उम्मीद थी कि आज सुनहरी चमक बिखेर पाएंगी, लेकिन गोल्ड मेडल हाथ से फिसल गया। 116.52 for Joyshri, Grishmani 117.05 and Pradhan 118.07. जी हाँ, ये वो मुकाबला जिसका हर कोई भारतवासी बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की मानसी लाठर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हर्षिता स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला 72 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती में। यहां बगल डूब किया, खूबसूरती के साथ पीछे आई और यहां पर हर्षिता 2 अंक बटोर कर एक अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में यहां से भारंदाज लगाने के लिए जद्दोजहद। और आप देख सकते हैं सुनील कुमार का जोशो खरोश,
दोनों उनकी स्टूडेंट मानसी लाठर और हर्षिता। और मुकाबले की रेफरी श्वेता उन्हें हिदायत देती हुई, और 1 अंक का इजाफा हुआ यहां मानसी लाठर के स्कोर में। क्या यहां से खींच करेंगी या गर्दन से, या हफ्ता भरा एक बार फिर से, और हफ्ता भरने के साथ ही ये देखिए खींचने का प्रयास मानसी लाठर द्वारा। मानसी जानती हैं कि इस वक्त हर्षिता बेहतर स्थिति में है। क्या हर्षिता यहां उलटफेर करने में कामयाब होंगी? क्योंकि हर्षिता, यहां देखिए मानसी लाठर ने यहां 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन यहां प्रोटेस्ट किया गया हर्षिता के खेमे से। 1 अंक और मिला मानसी लाठर के पक्ष में। मानसी लाठर विजयी रही, स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब, लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में कामयाब रही हर्षिता के खिलाफ। साथ देंगे हम वंशीधर यादव और पुष्पेंद्र दलाल के बीच में मुकाबला। जी हां, यहां पर फीतले भरे खूबसूरती के साथ 4 अंक और ये 6 अंक देखते ही देखते, पलक झपकते ही क्या यह मुकाबला खत्म हो जाएगा? जी हां, फीतले योगेश्वर दत्त की उन्होंने यादें ताजा करा दी हैं लंदन ओलंपिक खेलों की। और आप देख सकते हैं कि यहां स्कोर 8-0 हुआ और ये 10-0 के साथ ही मुकाबला समाप्त हुआ, और पलक झपकते ही यहां पर कांस्य पदक हाथ में आया। बहुत ही कम समय में हुआ इस मुकाबले का फैसला, जहां पर विजयी रहे इस मुकाबले में पुष्पेंद्र दलाल। मनोज, यहाँ पर विश्वेश यादव जो हैं वो बिल्कुल आत्मसमर्पण सा करके बैठ गए थे। साथ देंगे हम दीपांशु वर्सेस कृष्णा, इनके बीच में ये मुकाबला। हरदीप को हमने बहुत अटैकिंग कुश्ती लड़ते हुए भी देखा है ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में। 57 किलोग्राम ये अरे वजन में इस पर काबिले तारीफ खूबसूरती के साथ, और 2 अंक बटोरने में कामयाब। जैसा लग रहा था वैसा है नहीं मनोज, बहुत ही तेजी के साथ पलक झपकते हुए यहां पर अंकों में परिवर्तित किया, 2 अंक और ले लिए। तो यहां पर सुनिश्चित है पीछे हटकर पुनः अटैक करने का प्रयास दीपांशु का। यह प्रयास अच्छा और बाहर गिरने में कामयाब। 1 अंक सुनिश्चित है उनको और प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले के मुकाबले मन में ये अपने ही दांव में उलझे, डेंजर पोजीशन, बायफॉल्ट का खतरा मंडरा था और बायफॉल्ट प्रयास खुद करना चाह रहे थे, मगर उस प्रयास को, तकनीक को अपने लिए ही आत्मघाती सिद्ध कर लिया और लाभ में चले गए दीपांशु। साथ देंगे हम श्वेता एक बार फिर से बहुत आसान बनाए। अब तक 2 प्रयासों को उन्होंने 65 किलोग्राम, फिर 70 किलोग्राम और अब 75। क्या वही नतीजा दे पाएंगी? होल्ड किया और आसानी के साथ उस प्रयास को सफलता में तब्दील करती हुई गुड लिफ्ट के जरिए निसिमोल थॉमस अभी दूसरे पोजीशन पर चल रही हैं, और पहले पोजीशन पर खुशबू जिन्होंने 82 किलोग्राम वजन उठाया, 80 किलोग्राम थॉमस ने उठाया, 60 किलोग्राम बेस्ट रहा रीता का, और 75 किलोग्राम श्वेता कुंडू का। थोड़ा सा संतुलन गड़बड़ाया, लेकिन उसके बाद अपने आप को संतुलित किया। ये वजन उन्होंने उठा लिया 82 किलोग्राम पर। तीसरा और आखिरी प्रयास दामोदर। एक लक्ष्य रखा है, क्योंकि दोनों ने शुरुआत पहले अटेम्प्ट में 75 किलो से की थी, उसके बाद 70, 75 के बाद 80 पर पहुंची थॉमस, और अब खुशबू ने 82 किलोग्राम, और बहुत आराम से 82 किलोग्राम वजन भी उन्होंने उठा लिया। श्वेता कुंडू और अपना पहला प्रयास 80 किलोग्राम पर। ग्रिप बहुत अहम है, और वही ग्रिप बनाने की सोच थोड़ा सा समय लेती हुई और उस समय का सही सदुपयोग करती हुई गुड लिफ्ट, क्लीन एंड जर्क पहला प्रयास 95 किलोग्राम का। निसिमोल थॉमस जब स्नैच कैटेगरी के मुकाबले हुए थे 83 किलोग्राम वजन उठाया था, और यहाँ क्लीन एंड जर्क में पहला प्रयास क्लीन, बिल्कुल क्लीन रहा है, और अब जर्क देखना है किस तरह से वे कंप्लीट करती है।
खुशबू कुमारी 98 किलोग्राम, 3 किलोग्राम बढ़ाकर प्रयास, ये चेष्टा है उनके द्वारा और देखना है कितनी सफलता उनके साथ जुड़ती है। बहुत अच्छा और क्लीन एंड जर्क आगे आई लेकिन अब अपने आप को स्थिर किया उन्होंने। जज कितने प्रभावित हैं तो आप देखें, 2 जज ने उनके पक्ष में फैसला दिया। साथ में है हम और खेलना चाहते हैं। एक 120 किलो रुकना होगा जगह पर, तो पूरी बॉडी को स्थिर करना पड़ता है। अब आएंगे कोमल कार्तिक। एक 123 किलो चुनौती को और कड़ा कर दिया है कोमल कार्तिक ने। अभिजीत पांडे, एक 129 किलोग्राम का ये वजन, क्या क्लियर करेंगे? लग रहा है बहुत सही संतुलन पैरों और हाथों के बीच में, अच्छी डाइव और उसके बाद से वो क्लियर करते हुए एम अशोक। इस बार पिछली वाली जो गलती है वो उससे बचने की जरूरत होगी। अच्छा तालमेल बैठाया है इस बार बेहतर नजर आए, शुरुआत से ही बेहतर नजर आए, वो आत्मविश्वास नजर आया और 145 किलोग्राम का वजन उठाकर इस क्लीन एंड जर्क राउंड की समाप्ति की है उन्होंने। अब कोमल कार्तिक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आधा फासला तय किया और अब यहां से देखना है कि लिफ्ट किस तरह से जाती है। जी हां, गुड लिफ्ट की तरफ जाता हुआ और ये कोमल कार्तिक ने 14 किलोग्राम वजन बढ़ाकर आखिरकार 159 किलो वजन उठा लिया है वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में, जो पुरुषों के 94 किलोग्राम भार वर्ग में खेला जा रहा है। केवल एक लिफ्ट अभी नो लिफ्ट के रूप में गई है, बाकी सारी की सारी लिफ्ट उन्होंने सही गुड लिफ्ट की है। लास्ट लिफ्ट इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अभिजीत पांडे के लिए गोल्ड तक पहुंचना है तो इस लिफ्ट को उठाना होगा और गुड लिफ्ट में तब्दील करना होगा। 159 किलोग्राम का भार उठा लिया है। साथ में है हम और खेलना चाहते हैं। यहाँ मुस्कान, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स उनके लिए, यूथ नेशनल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अस्तिमा खेलो इंडिया में 2 गोल्ड जीते हैं। पटियाला में पढ़ाई करती हैं, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में और अंबाला में ट्रेनिंग करती हैं। 81 केजी, 81 किलोग्राम मुस्कान ने। अब वैष्णवी संतोष 80 किलो, 4 किलो वजन बढ़ाया है। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, अब थोड़ा सा अतिरिक्त वजन 79 से इंक्रीज 80 पर। और देखिए 79 किलोग्राम पर मगनती भी अब लेने जा रहे हैं, यानी सेम वेट, कोई इधर उधर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। जी बिल्कुल विकास, और जल्दबाजी इसलिए भी नहीं है कि ये लोग आपस में जब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में खेले हैं तो वहाँ मालूम है किसने कितना वेट उठाया और वहीं से क्वालिफाई होकर आए हैं। तो 79 केजी, 97 किलोग्राम पर मुस्कान। डाइविंग पोजीशन में इस समय ट्रांजिशन का दौर है, ये बहुत अहम हो जाता है जब आप ट्रांजिशन करते हैं। और इस बार उस 97 किलोग्राम की बाधा को पार करती हुई
वैष्णवी आ रही हैं और अब 105 किलो। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की वैष्णवी, संतोष उत्साहित करते हुए खेल प्रेमी, और वैष्णवी की लिफ्ट 105 किलो का वजन क्लियर किया। बेस्ट रहा उनका 105, और जो तय करेगी गोल्ड और सिल्वर 107 किलो का वजन। चुनौती 107 की। कीर्ति 97, 102 और अब 107। जी हाँ, 107 किलोग्राम वजन कीर्ति के द्वारा उठाया गया। 107 उनका बेस्ट रहा। साथ में है हम। प्रयास ऐसा लग रहा है थोड़े गुस्से में और खींच में, लेकिन कोई भी परेशानी नहीं हुई इस मर्तबा, और उन्होंने ये प्रयास सफल बनाया है, अपने हक में जोड़ा है। आकाश कौशल पहले बीए किया, उसके बाद अब बीपीएड कर रहे हैं। नेशनल गेम्स उत्तराखंड में चौथे स्थान पर रहे थे आकाश कौशल। 137 किलोग्राम की तीसरी कोशिश, सफलता। गुड लिफ्ट में परिवर्तित किया। प्रयास करेंगे, और तीसरा ही आयोजन है उनका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के योगेंद्र थोड़ा सा ठहरे, लेकिन उसके बाद पूरी ताकत झोंकते हुए, और हमें 127 किलोग्राम अपने लिए निर्धारित किया है। 2 किलो का वजन बढ़ाया है पिछले प्रयास से। स्नैच में 95 किलोग्राम उठाया था। इस बार 127 पर भी ऐसा लग रहा है क्लियर करेंगे बहुत आसानी के साथ। 2 प्रयास उनके, और दोनों प्रयास सफल होते हुए। पहला 125, दूसरा 127 किलोग्राम पर। आकाश कौशल को एक 168 किलोग्राम के लिए अपनी तन्मयता बनाते हुए, अपना फोकस बनाते हुए आकाश कौशल 168 किलोग्राम वजन। देखना है कितना प्रभावित किया है तीनों ही जजेस को, उनके निर्णय का इंतजार। जी हाँ, गुड लिफ्ट। और ये अंतिम लिफ्ट होगी योगेंद्र सिंह की। 169 यानी 2 किलो वजन बढ़ाकर आए हैं। छठी लिफ्ट, और 6 की 6 लिफ्ट उन्होंने गुड लिफ्ट की है। ये साथ में है हम। और खेलना are ready to start the bout. Today we also saw the adaptability makes the champions. This bout scores are nil right now. Round 1, Gurukhashi University have taken a lead, and that's another touch game for the Gurukhashi University. Guru Nanak Dev University Amritsar. Janisha from that left, and she is just still waiting. What a parry, and then she did that from the center line. Thankfully, after this round 2, 43 की बराबरी हो गई है। मीना देवी थोड़ी सी अब नाराज हैं, पर उस ब्रेक के बाद जेनिशा ने अच्छी वापसी की है। 2 पॉइंट लिए हैं लगातार, और एक भी पॉइंट गंवाया नहीं है उन्होंने। तो उनके पैरों को लगना, वापसी करना, क्या यहाँ पर अंक देगा? और जी हाँ, जेनिशा के खाते में अंक गए हैं। लगातार 3 पॉइंट जेनिशा ने यहाँ पर अर्जित किए हैं। अच्छी वापसी, बहुत अच्छा कमबैक। 44-43। क्या यहाँ पर अंक आएगा? और जीत यहाँ पर जेनिशा। देखेंगे रेफरी, मुझे ऐसा लगता है इस आखिरी पॉइंट को बहुत करीबी मामला हो सकता है। दोनों ही लाइट्स एक साथ जली थी। बहुत ही बारीकियों से देखेंगे रेफरी अपने सहायक
रेफरियों के साथ, उसके बाद निर्णय देने के लिए आए हैं और इशारा यहां पर आता हुआ मीना देवी के पक्ष में 44-44 की बराबरी हो गई है। अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने टीम के लिए ले जाएगा। 44-44 की बराबरी हो गई है। देखना होगा दोनों ही टीम, इस समय ऐसा लगता है गुरु काशी यूनिवर्सिटी मीना देवी के पक्ष में ये पॉइंट जाएगा, लेकिन चेक कर रहे हैं रेफरी। बहुत ही निर्णायक पल है, बहुत ही शानदार पल है, बहुत ही बेहतरीन पल है यह अंतिम मुकाबले का। यहाँ पर जीत हासिल की है गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने। साथ में है हम। हमारे सामने इस पिच पर ये दो टीमें फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। And this is final men's AP. Guru Nanak Dev University Amritsar. In this subject is very clear that the fences can hit at any parts of the body, so that they will get a point. जिस तरह से फुटवर्क देख सकते हैं आप, उनका फ्रंट फुट किस प्रकार से चलता है। एक अंक और आता हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर आता हुआ परमजीत के नाम पर। नाराज, हताश गौरव शर्मा। Sohail Sufyan, even though if he is going on to his zone, and look at the characterization, that big moment came for Guru Nanak Dev University Amritsar. Once again is a easy win for them. Sohail Sufyan does that for Guru Nanak Dev University Amritsar. साथ में है हम। यहाँ पर शुरू होगा गोल्ड मेडल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बनाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। Battle of the internationals, as the local announcer announces. Already the fastest woman in the time trial, Barsarani Barik here for Guru Nanak Dev University. In white and in black is Lovely Professional University there on your screens in that complete black. पहले लैप में तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बेहतरीन कमाल की शुरुआत की है। दूसरे लैप में क्या होता है देखना होगा विपिन। What remains in the tank? What can Barsarani do? Barik approaching that finish line. It's going to be a neck-to-neck affair, or is it? Oh my God! What a surprise it is! Guru Nanak Dev University of Amritsar pull off a stunning final lap and take that gold. साथ में है हम और खेलना चाहते हैं हम। ली है और अब चलेंगे गोल्ड और सिल्वर के लिए होगा। तो दोनों टीमों ने स्टार्ट लिया है। And off they go. What a lineup it is. Guru Nanak Dev University Amritsar, Chandigarh University. And right now it looks that it's very little to separate, not by the naked eye. You cannot separate these two from the naked eye. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के साइकिलिस्ट। तो गोल्ड मेडल यहाँ पर हमने देखा है टीम स्प्रिंट के लिए। साथ में है हम।